Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Student, in previous video we learned how to find equivalent fraction by multiplication and division method. But in this video we will learn question number 9 and 10. In question number 9 we learn how to check whether the given fractions are equivalent or not by cross multiplication method. In this question what we learn, इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे बेटा, जब आपको टू फ्रैक्शंस गिवन है और आपको चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. ओके बेटा, एंड हाउ वी चेक विद टू फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जब आपको टू फ्रैक्शन गिवन हो और ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम कौन से मेथड से चेक करते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो हाउ वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, we put cross multiplication sign. पहले आप cross multiplication sign put करेंगे. now what is it means? अब इसका क्या मीनिंग है? अब 4 is multiplied by 27 या 27 is multiplied by 4 and 12 is multiplied by 9 and 9 is multiplied by 12. okay बेटा, so while doing cross multiplication learn one more thing. You will not change the side of numerator. आप न्यूमिरेटर की साइड चेंज नहीं करेंगे. जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 किससे मल्टीप्लाई है? 27 से मल्टीप्लाई है. एंड 4 इज इन विच साइड? कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में. तो आप क्या करेंगे? 4 इंटू 27 यू विल राइट ऑन लेफ्ट साइड एंड 12 इज ऑन विच साइड? 12 न्यूमिरेटर कौन सी साइड है? राइट साइड है. तो आप इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो राइट साइड राइट करेंगे. ओके बेटा, then 4 7 ja 28 carry 2, 4 2s are 8, 8 or 2 10. now multiply this also. yes, 12 9 ja 108. now check their value. अब इनकी वैल्यू चेक करो. this is also 108 and this is also 108. so their value are same. it means these both fractions are equivalent. अगर आप किसी चीज के 4/9 पार्ट लेते हो या किसी चीज का 12/27 लेते हो, तो इट मीन्स बोथ केस में आपको सेम अमाउंट मिलेगा, सेम पार्ट मिलेगा उस चीज का. तो दीज बोथ आर इक्विवेलेंट. तो व्हाट वी राइट आंसर? यस, दीज फ्रैक्शंस आर, दिस इज आंसर, आर equivalent. I don't have space so I written here, but you will write downward. आप नीचे राइट करेंगे. ओके बेटा, one more part I am teaching. बेटा again we are to check whether these fractions are equivalent or not. First of all what we do, we put cross multiplication sign and after putting cross multiplication sign we will multiply, and while multiplying what we keep in our mind, 11 is numerator, 11 is on which side? Left side. so we will not change the side of 11. it is on left side, so we show its multiplication on left side. 11 लेफ्ट साइड है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कौन सी साइड शो करेंगे? लेफ्ट साइड ही शो करेंगे. एंड 33 इज मल्टीप्लाइड बाय 15, तो वी शो इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑन राइट साइड बिकॉज इट लाई ऑन राइट साइड. देन 11 0 जा 0, 11 6 ja 66, 15 3 ja 45 carry 4, 15 3 ja 45 and 4 49. now check its value. अब इनकी वैल्यू चेक करें. this is 660 and this is 495. their values are not same. it means these are not equivalent fraction. so what we write here? you will write downward answer. downward of this you will write answer. I have no space so I am writing here. no, these are not equivalent fraction. did you get how to check whether the given fractions are equivalent or not? I hope you got. now come to question number 10. reduce each of the following fraction to its lowest term
बेटा in this question what we learn how to reduce fraction to its lowest term. So first of all question arises, what do you mean by lowest term? Beta a fraction is in its lowest term when the numerator and denominator is only divisible by 1. एक फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में कब होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता. ओके बेटा. सो अब आपको जब आपको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन को, तो आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिवाइड करेंगे सेम टेबल से जब तक ये डिवाइड होता है. जब भी आप फ्रैक्शंस को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं तो आपको क्या करना होता है? आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड करेंगे जब तक ये डिवाइड होगा. और व्हेन यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ना, चूज और सिलेक्ट हाईएस्ट नंबर. आपको हाईएस्ट नंबर सिलेक्ट करना है. ओके बेटा. मीन्स हाईएस्ट टेबल डिसाइड करना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ डिवाइड कर दे. ओके बेटा. नाउ चेक 7 and 35 कम्स इन विच टेबल? बोथ नंबर्स कम्स इन विच टेबल? कौन से टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं. तो वी विल डिवाइड बाय 7. तो 7 1 जा 7 और 7 के टेबल में 35 वेयर कम्स 5 जा. नाउ अगेन चेक. अब आप फिर से चेक करेंगे 1 and 5 कम्स इन एनी टेबल? ये सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है. तो अभी मैंने आपको क्या बताया है? एक फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में कब होती है? जब वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होती है. जब उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है. तो 1 and 5 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा. ये 1 और 5 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते ना. तो नाउ इट इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म. अब ये किस फॉर्म में हो गई? लोवेस्ट फॉर्म में हो गई है. ओके बेटा. वन मोर पार्ट आई एम टीचिंग. अगेन वी आर टू reduce this fraction into its lowest term. और जब भी आप लोवेस्ट टर्म में चेंज करते हैं तो we divide numerator and denominator by same number till it is divided. जब तक ये डिवाइड हो रहे हैं तब तक आप डिवाइड करोगे. और when you divide choose the highest factor. factor means डिवाइड करने वाला नंबर. तो आपको हाईएस्ट चूज करना है. अगर आप स्मॉल चूज करते हैं तो इट टेक्स टाइम. आपको मोर देन 1 टाइम डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोवेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? वो सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, है ना. तो नाउ टेल मी दे कम्स इन विच टेबल? देखो दे कम्स इन 2 टेबल ऑल्सो, दे कम्स इन 4 टेबल ऑल्सो, दे कम्स इन 8 टेबल ऑल्सो, दे कम इन 16 टेबल ऑल्सो. अगर बेटा आप इसको 4 से सपोज करो 8 से डिवाइड करते हो आप इसको, तो 8 जा 64 और 8 10 जा 80, है ना. अब लोवेस्ट टर्म क्या होती है? लोवेस्ट टर्म होती है कि वो सिर्फ और 1 से डिवाइड होनी चाहिए. ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रही है. नहीं, अभी ये 2 से फिर से हो रही है ना डिवाइड. 2 से फिर से डिवाइड हो रही है. 2 4 जा एंड 2 5 जा. अब नाउ सी 4 and 5 कम्स इन विच टेबल? 4 और 5 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं ना. नाउ इट कम्स इन इट्स लोवेस्ट टर्म. जब आप स्मॉल फैक्टर डिसाइड करते हो, स्मॉल फैक्टर से डिवाइड करते हो, तो आपको मोर देन 1 टाइम डिवाइड करना पड़ता है. ओके बेटा. बट जब आप हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट नंबर डिसाइड करते हो फॉर डिवीजन, तो आपको ओनली 1 टाइम डिवाइड करना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट इफ यू डू दिस क्वेश्चन बाय 16, इफ यू डिवाइड दिस नंबर बाय 16, आप डायरेक्ट 16 से डिवाइड करते हैं तो यू आर टू डिवाइड ओनली 1 टाइम. आपको एक बार ही डिवाइड करना पड़ेगा. 16 4 जा 64 एंड 16 5 जा 80. तो देखो इसमें आपको 2 टाइम डिवाइड करना पड़ा. फर्स्ट टाइम 8 से, फिर 2 से. देन यू गेट 4/5 और 4/5 इज ओनली डिविजिबल बाय 1. और जब एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, देन दिस फ्रैक्शन इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म. तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू. आप स्मॉल नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं और ग्रेटर नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं. बट स्मॉलर नंबर में आपको 1 से ज़्यादा टाइम डिवाइड करना पड़ता है
अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर सिलेक्ट करते हैं तो आपको वन टाइम ही डिवाइड करनी पड़ती है, और वन टाइम डिवाइड करने से ही जो फ्रैक्शन है वो लोवेस्ट टर्म में आ जाती है। ओके बेटा, वन मोर पार्ट आई एम टीचिंग, अगेन चेक whether the given numbers are divisible by which number, ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रही है। तो बेटा these both numbers are divisible by 2 also and 6 also, है ना। तो 2 से करेंगे तो आपको 1 से मोर टाइम डिवाइड करनी पड़ेगी, बट आप किससे करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। आपको सेम टेबल से डिवाइड करना है, ये नहीं कि इस नंबर को किसी और टेबल से कर दे और इस नंबर को किसी और टेबल से कर दे, नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब भी आपको निकालनी होती है, लोवेस्ट टर्म जब भी आपको निकालनी होती है, सेम टेबल से मल्टीप्लाई, सेम टेबल से डिवाइड करना होता है, और लोवेस्ट टर्म में आपको डिवाइड करना होता है। ओके, तो 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48। नाउ टेल मी 7 एंड 8 कम्स इन एनी टेबल। 7 और 8 किसी टेबल में आते हैं, नहीं। इट इज ओनली डिविजिबल बाय 1, इट इज ओनली कम्स इन 1 टेबल। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं किसी फ्रैक्शन के, देन द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म। तो नाउ दिस फ्रैक्शन इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म मीन्स इन नंबर्स को छोटा करके लिखना। तो 42, अगर आप किसी चीज़ के 48 पार्ट करोगे और उसमें से 42 पार्ट ले लोगे, और उसी चीज़ के आप 8 पार्ट करोगे और 7 पार्ट ले लोगे, तो इन बोथ केसेस यू विल गेट सेम पार्ट ऑफ दैट थिंग। ओके बेटा, एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दिस यू विल डू इन बुक। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? ओपन योर बुक एंड सी, टिक द फ्रैक्शन विच आर इन देयर लोवेस्ट टर्म एंड क्रॉस द रेस्ट। इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर टू डू, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि विच फ्रैक्शंस आर इन इट्स लोवेस्ट टर्म। और एक फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में कब होती है, फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए, एक फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में कब होती है, अभी व्हाट जस्ट आई टोल्ड, क्या बताया था, एक फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में तब होती है जब ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होती है। नाउ सी ए पार्ट में क्या है, 15 और 25, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो दिस फ्रैक्शन इज नॉट इन इट्स लोवेस्ट टर्म, तो वी पुट क्रॉस, आप क्रॉस पुट कर देंगे। वन मोर पार्ट, बी पार्ट, 18 बाई 35। नाउ चेक 18 एंड 35 कम्स इन विच टेबल, किसके टेबल में आते हैं, किसी टेबल में आते हैं 18 और 35, नहीं आते। इट ओनली डिविजिबल बाय 1, ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिर्फ 1 के टेबल में आ रहे हैं, और ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 18 भी आता हो और 35 भी आता हो। तो दिस फ्रैक्शन इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म। तो जो फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में है, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रही है, तो उसके आगे आप टिक पुट करेंगे। और जो फ्रैक्शन 1 अदर देन 1 के अलावा दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो रही है, तो वो लोवेस्ट टर्म में नहीं है, और आप उसके आगे क्रॉस पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू इन बुक, and question number 9 and 10 you will do in your notebook, and do 6 parts. Okay beta, A to F part you can do. Bye beta.